And the weather and the climate are making news in more than one region. A terrible drought has already taken... We do not know how much our climate could or will change in the future. More than a week of severe flooding has killed at least 72 people in Central and Eastern Europe and Western Russia. The heaviest recorded rainfall in Indian history has unleashed the worst flooding in living memory. We do not know how fast change will occur, or even how some of our actions could impact. In Chicago, the heat is a plague. This morning, they were collecting bodies again. Firefighters in Southern California are battling a newly formed super wildfire. The heat is on coast to coast. Even Arizona is having a heat. Tennessee was battered by killer tornadoes. New Orleans is no longer safe to live in. It is that simple and that stark. Hell and high water, one and the same again today in a city overwhelmed, under siege, in the grip of unmitigated, unprecedented catastrophe. Nowhere is that more apparent, of course, than New Orleans, now a city of displaced people, refugees. 20 feet of water from Lake Pontchartrain. Add to that violence, deprivation, desperation, the rising threat of disease. Could it be that man-made global warming is the greatest hoax ever perpetrated on the American people? Garbage is comprised of the following materials: paper, plastic, metals, glass and food waste. Although most of this garbage is recyclable, very little of it makes it to a recycling facility. Plastics, metal and glass can remain in landfill for 1 million of years before they break down, and when incinerated they release toxic fumes. In developed areas, there are services that will remove these materials and properly recycle them, but for most people no such services exist. Recycling takes much energy, a lot of labor and does not leave much of a final product. For most of the world, it is a lot easier simply to throw it in a dustbin than deal with the difficulty of recycling it. Garbage in a city can cause a variety of problems. These include contamination of groundwater, surface water and even cities' water system if leaching of chemicals occurs from the disposal site. A landfill, also known as a dump, is a site for the disposal of garbage for burial and is the oldest form of garbage treatment. Historically, landfills have been most common methods of organized garbage disposal and remain so in many places around the world. किसके अंदर है आपको आइडिया है? सबके अलग अलग है। नहीं ना वो एरिया किधर है? किसके अंदर है? किसके अंदर है? सब एक ही के अंडर में रहता है, मतलब खाली एरिया बाय एरिया में। अभी 70 लोग अलग 70 तो कौन सी गाड़ी में पहुंचती नहीं? पूछते हैं ना, मतलब कौन सा गाड़ी जाएगा वो नहीं मालूम, वो नहीं पता। नॉर्मली मतलब पब्लिक भेजती है इधर साफ सफाई करने। ये सोचा क्लीन करना चाहिए। See, they are disposing, all the other waste, like plastic and what say reusable waste is ना? The reusable waste is keeping inside this bag. All the papers and all which are reusable now, he's putting in this bag. See, all the domestic waste are they like put together? Dude, see, they are separating the waste. The reusable waste they keep inside. चावल अलग है क्या? वो बिकता है ना? अच्छा। Okay, so let's see this construction site there. Go. कितना गंदा है, गंदा बोले तो हफ्ते में दिन में 2-4 बार ये साफ करना मानता है। इन लोग 2 बार साफ करेगा तो करते नहीं तो उससे गिर जाता है। आप लोग अभी कुछ कंप्लेन कंप्लेन करते अपना सुनने वाला है क्या? अपन नेता होगा तो अपन कर सकते हैं, सुना सकते हैं उसको। प्राइवेट वालों को देगा तो बराबर हो जाएगा। पब्लिक को कुछ करना चाहिए अपने हिसाब से। पब्लिक को क्या करेगा? म्यूनसिपलिटी वालों के सामने पब्लिक क्या बोलेगा? नहीं, पब्लिक को भी तो कुछ करने से कचरा नहीं फेंके, साइड में वो करे ना, अलग कर दे कचरे को, वो सब। उसके लिए इससे आदमी काट रखना पड़ेगा। अपन बोलेगा सुनने वाला है तो कचरा आके उठा के फेंक देगा। कोई बोलने वाला है? उन लोग कोई बोल सकता है क्या? ऐसे गाड़ी में रिक्शे में जाके उन लोग जब भी फेंक देते हैं, गाड़ी में आके उन लोग वो भी फेंक देते हैं। हफ्ते में कितनी बार आता है? हफ्ते में दिन का 2-3 बार आता है। गवर्नमेंट क्या करनी चाहिए?
बीएमसी वाला बीएमसी वाला दिन में 3-4 बार आके करना मानता है, साफ करना मानता है। तो कितनी बार आता है? 2 बार आता है, आएगा तो आएगा, नहीं तो आएगा भी नहीं। ऐसा कभी महीने में महीने में आएगा तो पूरा कच्चे जम जाएगा पूरा। दिन में आना मानता है, दिन में 2 बार आते तो भी ना खाना। क्या टाइम पे आते हैं लोग? दोपहर सुबह एक बार आते, दोपहर का एक बार, रात को एक बार आ जाते। आप कुछ बोलते नहीं उनको, एक से ज्यादा बार आओ? अरे अपन बोलने का तो उन लोगों को बड़ा ऑफिसर को जाके मिलना पड़ेगा अपन को। तो आपने कभी सोच नहीं किया? ऐसा सब सोचने के बाद तो 10 आदमी मिलके जाना पड़ेगा, अकेले जाने से। आपने इसके बात नहीं किया? उधर जाओ, आप सारा कंप्लेंट करने को कितना सुनता है वो देखने। सुनेगा, मैं मानता हूँ। आप लोग जा चुके हो? क्या कौन सुनता है? एक सादा काम लेने को जाओ, कुछ आओ 10 दिन के बाद बोलेगा, देखेगा तुम्हारा कंप्लेंट करने जाएगा तो सुनेगा क्या? किसको टाइम है क्या घड़ी घड़ी उधर जाने का, धक्का खाने का, आने का? ये किसका काम है? जो अच्छा, जो बड़ा करे, सोशल वर्कर, नगर सेवक है। हाँ, उन लोगों का काम है ना जाने का। क्यों नहीं बीएमसी टाइम पे आती है, लेकिन तुम कचरा आधे रोड पे फेंक के जाएंगे तो बीएमसी इधर है ना, डांडा वाला नहीं कोई बोलेगा कि बीएमसी टाइम पे नहीं आती। बीएमसी टाइम पे आती है, लेकिन पब्लिक केयरलेस है। अरे अंकल, पब्लिक केयरलेस है। पब्लिक अभी ये भी देखो, इधर कचरा इधर दुकान तक फेंक के जाती है। शाम को आएंगे ना, उसके बाद में उठाएंगे। आज के तो कचरा है नहीं, तो अभी इधर तक कचरा दिखता था। कचरा और ड्राई कचरा अलग अलग करके अलग अलग जगह पे फेंकना मांगता है ना, वो सही बात है। वही ना, ये बाजू में इधर दुकान लगा के बैठे रहते हैं, तो वही बात है ना। कपड़ा जो ये सब जाता है जमीन पे, कहाँ डालते हैं आप इसको? कचरे के डब्बे में ना। और फिर वो जाता ही नहीं है, उधर ही पड़ा रहता है? कौन सा हुआ? वही जो आप जो कपड़ा फेंकते हैं एक्स्ट्रा, कचरे वाला लेके जाते हैं ना। क्या टाइम पे आता है लेने के लिए? सुबह के टाइम पे आते हैं ना। सुबह में आता है, सुबह में दोपहर को आते हैं ना, 10 बजे आते हैं, दोपहर को 3-3:15 बजे आते हैं। दोपहर को 3-3:15 बजे। अभी डस्टबिन भी रिमूव किया, बहुत जगह भी देखे गए डस्टबिन रिमूव किया। अपन गाड़ी ही खड़ी कर दे उसको, अभी इधर देखो 20 मिनट खड़ी करे, वो टाइम में वो सब लोगों ने आके उधर कचरा गाड़ी में डालने का। ये देखो बैंडस्टैंड में है, इधर बैंडस्टैंड में तो बहुत टाइम लगती है, 15 और 10। ये ऐसा अपन ये सब किया है, ये ऐसा एक ईयर रहता है। ये बीट है, ये एक गाड़ी का बीट, एक गाड़ी का। अपन क्या करता है, एकदम कभी कभी बीच में थोड़ा फिल्ट्रेशन रहता है, तो ड्रेनेज साफ किया, कुछ किया, रोड में डाला है, वो अपन कलेक्ट करते हैं, एक सेंटर में जमा करते हैं। अपने पास जीप रहता है, वो छोटा डंपिंग टाइप जीप रहता है, जैसे कभी देखा जाए तो वो जीप से अपन क्या करते हैं, एक कलेक्शन सेंटर में, बड़ा कलेक्शन सेंटर में डालते हैं, उधर जीसीबी लगा के बाद में अपन उठाते हैं। सील्ड वगैरह थोड़ा कुछ रहेगा। ये टाइप है। और ये हमारा 3 शिफ्ट का है, देखो ये फर्स्ट शिफ्ट में बड़ा प्रोग्राम है इतना पूरा, तो सेकंड शिफ्ट प्रोग्राम है, थर्ड शिफ्ट प्रोग्राम है। देखो अभी अपने पास ये सिस्टम है, जीपीएस सिस्टम है। हमारा गाड़ी है ना, हम रूट करते हैं किधर गाड़ी है खड़ी, ग्लोबिंग पोजिशन ट्रैकेट फॉर्म। ये गाड़ी कितने बजे रिपोर्टिंग होते हैं, अपन ट्रैकिंग भी कर सकते हैं उधर गाड़ी का, कि बाबा किधर गाड़ी है, अभी कौन सा स्टॉप पे खड़ी है। पब्लिक देख सकती है क्या ये इन्फॉर्मेशन जीपीएस की? उसकी कुछ मुझे आइडिया नहीं, वो जाओ साइट पे, उधर आपको मिलेगा। So only the government can do it. I think the government. Only the government can do it. आप जाओ, वो जीपीएस वो गाड़ी के अंदर है। गाड़ी के अंदर रहता है। आप भी जा सकते हैं इंटरनेट पे, अपना बीएमसी साइट पे आपको मिलेगा वो जाएगा, आपको वो वार्ड का पूरा किधर गाड़ी है, ये रूट हमको मालूम पड़ेगा, उससे हम चेक करते हैं गाड़ी का है। उसका गाड़ी का रिपोर्टिंग टाइम भी आता है इधर। कई गाड़ी का एक क्या होता है, बंद पड़ता है, इसीलिए नॉट रिपोर्टिंग आता है। तो सब जीपीएस सिस्टम से हमको मालूम भी पड़ता है गाड़ी वो हर जगह वो कचरे के हिसाब से हम लगाए। जिधर ज़्यादा अपना ये है ना, जिधर ज़्यादा कचरा है उधर ज़्यादा ये रहेगा। गाड़ी का प्रोग्रामिंग हमने चेंज भी करते हैं, कभी गाड़ी में कम कचरा जाता है तो हम ज़्यादा उसमें दूसरा बीच में ऐड करते हैं और अदर पॉइंट और गली बिल्ले। As all aware of the fact that sewage contains drainage water from household and industry, and the sewage water is let out into the sea through various channels like narrow and broad sewage. But people carelessly dump their waste and unwanted commodities in the sewage, due to which the sewage gets heavily clogged up and turns stagnant and proves to be breeding grounds for all the mosquitoes and fleas, which causes dreadful diseases
like malaria and dengue. These clogged sewage add to the misery of the people during rains. Dave, a sewage site worker, gave us a knowledge about disposal of sewage, which is gathered from the sewage, is disposed in the dumping ground at Devnar, Mulund and Goroi. He told us the liquid is left into the sea and the solid is disposed into the dumping grounds. हम लोग अभी इधर से कमल में चुनते हैं, बैंड बाजर चुनते हैं, ऐसा कुंडी कुंडी लेके ऐसा कुंडी है ना, इधर इधर कचरा चुनते किधर भी। तो आप इसे कहीं लेके जाते हैं कि ट्रक यहाँ पर सीधा के इसको लेके जाते हैं? हम लोग लेके आते हैं बोझे सर पे, इधर डाल देते हैं, वजन होता है, फिर इन लोग क्या करते हैं, बड़ी गाड़ी आती ना, उसमें माल उठा के पलट लेती, फिर वो गाड़ी किधर जाती वो हमको मालूम। ये आप जमा करते हैं, एक आपके पास कितने दिन में जमा होता है? एक दिन में जमा होता है? नहीं, एक दिन का माल, रोज का माल बेचते हैं। रोज का माल मतलब इतना एक दिन में जमा हो जाता है? हाँ, ये सब भाई लोग का ये, मेरे एक ही का नहीं है, सब जन भाई लोग का। एक साथ में फिर भी आपके हिसाब से कितने जन जमा करके लाते हैं सब? ये सब अभी भाई ये बहुत भाई लोग है, अभी 80-90 के ऊपर भाई लोग है, कचरा चुनने वाले बहुत भाई लोग है, आदमी लोग भी है, बच्चे लोग भी है, कचरा चुनने वाले। Construction is one of the booming business in today's world. We all praise the builder for his emphatic structures, but never think about waste produced during that process. The construction waste include waste like dust, silica particles, debris, leftover cement sacks, broken bricks, unused metal scrap, and rubble. At a construction site, in a talk with a worker, we came to know that most of the construction waste, like broken bricks, rubbles, broken tiles, are collected and later used for landfillings, and the metal scrap is sent for further recycling. इसका जब पूरा बन जाता है तो थोड़ा इधर रखते हैं, कुछ कहीं तो डालते नहीं, कहीं तो फेंकते रहते दूसरी जगह बराबर देखिए लैंड फिलिंग्स. Okay, means these things, these debris which is left, they use in land fillings at many dump yards or something. जो सीमेंट की बोरी अक्की बच जाती है वो सब क्या करते हो? तो वापिस रख देते फिर दोबारा सूख नहीं आती. बारिश में खराब नहीं होती है? नहीं, तो अलग जगह रखते हैं, सूखी जगह के अंदर. अच्छा, मतलब आप सूखी जगह ऐसी जगह रखते हो जहाँ पर डैमेज नहीं होता उसको, पर पानी नहीं लगता. अच्छा, सीमेंट. हम लोग डिस्ट्रॉय करके अपना प्लास्टिक बैग में डाल के, और नॉर्मली उसका म्यूनसिपैलिटी का बायोमेडिकल वेस्ट का वैन आता है, जो कभी कभी आता है, कभी कभी नहीं आता है. फ्रीक्वेंसी क्या होती होगी उनकी? फ्रीक्वेंसी आता है, कभी कभी आता है 15 दिन में, लेकिन आता है नहीं कभी, यही एरिया में नहीं आता है. अच्छा. बिकॉज नॉर्मली वी वांट टू दैट वी नॉर्मली थ्रो द दिस थिंग discarded syringe with broken syringe needle, we keep it separately and throw it out with this thing in the sea or something like that. Okay. Not here, not anywhere. Okay, the sea. Okay, but if they come, we give them. Okay, fine. So, how many syringes do you get collected in by the time they come? Any number or something? Like normally if they don't come, I got a syringe cutter needle with sterilizer. I just do my. So, how many syringes are collected by them? About in a month, it must be about 50-70. Okay, fine. Okay. And what about the bandages and the cotton swabs? Bandages we normally don't use so much. Okay. Don't use it. If we use also, we just pack in a polythene bag and we say throw separately and they use it. Yeah, that's why we broke it and we break the distance. Okay, so what do you do with the syringe? Only the syringe. With the leftover only the syringe, the leftover part of the syringe we keep in a plastic baggage and then okay, throw it. And what about the? And this we throw it in the if the waste management doesn't come, we throw in the sea. Okay, you throw it in the sea. So you wrap it up in a plastic bag and then plastic throw it in the complete. sea. Other put in a plastic bottle. Okay, put in a plastic bottle and just throw it off. In the sea. Can you break one more, please? Don't mind.
करिए कुछ करिए नस नस मेरी खोले हाय कुछ करिए कुछ करिए बस बस बड़ा बोले अब कुछ करिए ओ कोई तो चल सिद्ध फड़िए तू बेतरिए या मरिए हाय कोई तो चल सिद्ध फड़िए तू बेतरिए या मरिए चक दे हो चक दे इंडिया 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 कूचों में गलियों में राशन की फलियों में बैलों में बीजों में ईदों में बीजों में रेतों के दानों में फिल्मों के गानों में सड़कों के गड्ढों में बातों के अड्डों में उनका राज भर ले 10-12 बार कर ले रहना न यार पीछे कितना भी कोई खींचे टस है ना मस है जी जिद है तो जिद है जी किसना यूं ही किसना यूं ही किसना यूं ही बस करिए कोई तो चल सिद्ध फड़िए तू बेतरिए या मरिए हाय कोई तो चल सिद्ध फड़िए तू बेतरिए या मरिए चक दे हो चक दे इंडिया 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 चक दे हो चक दे इंडिया